आओ। आका, कहिए। नाज़नीन खातून का वक्त शुरू हो गया है। फातिमा सुल्तान ने आपको मालूमात देने के लिए भेजा है। मलिका पुरसुकून रहिए, खुद पे काबू रखिए। खुदारा क्या करूं बताओ मुझे। अगर शहजादा हो गया तो क्या होगा? मुस्तफा के साए से भी खौफजदा रहती हूं मैं, और अगर अब दूसरा शहजादा हो गया तो क्या करूंगी मैं? ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जरूरत पड़ी तो उसे फातिमा सुल्तान के कमरे से निकाल लाऊंगी मैं। तुम्हें अपने कदमों पर अपने पास खड़ा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम ठीक हो गए हो अमीरुल बहर पाशा? खुदा का शुक्र है, अब तबीयत बहुत बेहतर है। कुछ देर कबल यहां आते हुए आपके यहां विलादत का सुना। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। आमीन। यहां हो। आका, आपसे गुफ्तगू की फुर्सत में असर न आ सकी। एक तरफ मेरी सेहत, दूसरी तरफ मुख्तलिफ हादसात। लेकिन आप देख रहे हैं मैं सलामत हूं, आपके सामने हूं। मगर मैं आपसे अपनी सुबुकदोशी की गुजारिश एक मर्तबा फिर पेश करना चाहता हूं। तुम्हारी मुझसे और सल्तनत आलिया से जबरदस्त वफादारी को सारी दुनिया जानती है, और अगर कोई नहीं भी जानता लेकिन मैं जानता हूं अमीरुल बहर पाशा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अमीरुल बहर नहीं बल्कि उसके साथ मेरे दोस्त भी हो। हम दोनों एक राह के मुसाफिर हैं। आप जैसे एक अजीम उल मर्तबत बादशाह ने मुझे अपना दोस्त समझा। अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। वक्त इंसान की जवानी लेकर चला भी जाए मगर इंसान का दिल उसकी रूह कभी नहीं छीन सकता। खैरुद्दीन, वक्त के साथ उसकी अक्ल बहुत पुख्ता हो जाती है। इस वजह से मैं तुम्हारी सुबुकदोशी की गुजारिश कबूल नहीं कर रहा। जब तक तुम्हारी सांस जारी है तुम बहरी बेड़े की सरबराही करते रहोगे। शहजादे बेआज़त महल में बहुत कम रहते हैं, मुस्तकिल अवाम के दरमियान होते हैं। उनकी परेशानियां सुनकर उनका हल ढूंढते हैं। खुद को खतरे में नहीं डाल रहा होगा इंशाअल्लाह। मैंने भी उन्हें इस ज़मन में मोहतात रहने की नसीहत की थी, लेकिन इस बारे में
وہ بالکل احتیاط سے کام نہیں لیتے، ظاہر ہے۔ وہ تو لالا مصطفیٰ ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ بیازت کا جوش ایک طوفان جیسا ہے مترک جی، ایسا کہ بارش ہوتے اگر دیکھ لے تو پتھر پھینکنے شروع کر دے گا۔ جلد از جلد سے اپنی اس عادت سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سمجھ جائیں گے اور آپ کے لائق شہزادے ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ منیسا سے کیا خبر لائے ہو؟ سلیم کیسا ہے؟ وہ منیسا پہنچتے ہی عوام کی پریشانیاں ختم کرنے میں مصروف ہو گئے میرے آقا۔ کافی عرصے سے پانی کا مسئلہ تھا، اسے حل کر کے عوام کو مطمئن کر دیا ہے۔ کیسے حل کیا؟ 2 مختلف جگہوں سے نہریں کھدوا کر شہر تک پانی لانے کا بندوبست کیا۔ بہت زیادہ اخراجات کی وجہ سے دربار بھی اس کے خلاف تھا، لیکن شہزادے نے اخراجات کا ایک حصہ اپنے ذاتی خزانے سے خرچ کر ڈالا۔ اعلیٰ۔ حرم کی صورتحال کیا ہے؟ ان کی منظور نظر نور بانو خاتون کے امید سے ہونے کا سنا ہے۔ میں جانتا ہوں، حرم نے بتایا تھا۔ بابا بننے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ کیا وہ خورد و نوش میں احتیاط کر رہا ہے؟ مجھے افسوس ہے میرے آقا، شہزادے بعض بری عادتوں کو اب تک ترک نہیں کر پائے ہیں۔ سنا ہے محل جانے والی شراب کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اگر کچھ اور نہیں کہنا تو تم جا سکتے ہو۔ میرے آقا، ایک خاص مسئلہ اور ہے۔ شہزادے سلیم بازار میں بھیس بدل کر گئے تو وہاں ایک حادثہ رونما ہو گیا۔ ایک دکاندار کو مار دیا گیا۔ دکاندار کی بیوی نے شہزادے کے خلاف قاضی سے شکایت کر دی، لیکن مقدمے کی سماعت نہ ہو سکی۔ مسئلہ کیا تھا؟ شہزادے بھیس بدلے ہوئے تھے، اس لیے غافل کو معلوم نہیں ہو سکا۔ میں آپ سے اس بارے میں معافی چاہتا ہوں، گستاخی معاف فرمائیے۔ عیاش اور عورتوں کی خلوت میں رہنے والا اس نے انہیں یہ تانا دیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کیوں نہیں ہوئی؟ دکاندار کی بیوی نے شکایت واپس لے لی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ گواہان کو بھی خاموش کروا دیا گیا ہے۔ عوام کے کہنے کے مطابق آقا حادثے کو دفن کر دیا گیا۔ غضنفر آغا، شہزادے اپنے کمرے میں ہیں کیا؟ بالکل ہے، خیریت تو ہے؟ ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایسے اپنی مرضی سے تم نہیں مل سکتی، قواعد اور ضوابط اب تک سیکھے نہیں تم نے۔ میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ رکو، ابھی نہیں، تم دوبارہ آ جانا۔ رکو، کیوں آئی ہو تم؟ اجازت کے بغیر کیسے آ سکتی ہو تم؟ نوربانو، کیا ہو گیا آپ کو؟ کل تک تو مجھ سے محبت کی باتیں کر رہے تھے اور اب دوسری عورتوں کے ساتھ خود کو بہلا رہے ہیں۔ ابھی تم جاؤ، مناسب وقت پر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس ملاقات کے بعد آپ میرے پاس آئیں گے؟ مت آئیے گا، میں نہیں چاہتی ہوں۔ سلیمان، سلیمان، سلیم کے کارناموں کا علم ہوا تمہیں؟ خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ بازار میں بھیس بدل کر گھومتے ہوئے ایک دکاندار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے بھی برا یہ کیا کہ حادثے کو مٹی میں دبا دیا۔ کس نے بتایا آپ کو یہ سب؟ قاضی سے شکایت کی گئی تھی، لیکن اب کیا حکمت تھی کہ شکایت واپس لے لی گئی اور گواہان کو بھی خاموش کرا دیا گیا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایسے
बिल्कुल अचानक वो कैसे किसी की जान ले सकता है? सलीम को अय्याश कहा उस गाफिल ने, औरत की खलबत का दिलदा था। अफसोस, एक शहजादे को क्या ऐसा होना चाहिए? कोई भी मेरे पे सर पर इल्जाम नहीं लगा सकता। हुर्रम, खता की होगी, लेकिन ऐसे घिनौने इल्जामात उस पर आयद नहीं किए जा सकते। वो बहुत अरसे पहले शराबनोशी तर्क कर चुका है। मुझे उसके हरम के निजाम की हर खबर रहती है। अनकरीब साहिब औलाद भी होने वाला है। इसका सबब जो भी हो, ये सब कबूल नहीं किया जा सकता। मेरी औलाद इंसाफ कायम करने से रूगर्दानी करेगी तो मैं और अवाम उसके एहतराम करने का ख्याल दिल में कैसे लाएंगे? हुर्रम, रोज़े महशर में अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाऊंगा? इस दुनिया का निजाम कैसे कायम रख पाऊंगा मैं? शहजादों से हमेशा खताएं होती रहती हैं सुलेमान। हर कोई अक्ल दानिश के मशवरे का मोहताज रहता है हर दौर में। सलीम पर आयद जिम्मेदारी बहुत भारी है। वो नातजुर्बेकार है। मुस्तफा ने भी इस उम्र में अपनी नातजुर्बेकारी के सबब कई खताएं की, आपको मालूम है। हर खता की एक सजा भी होती है हुर्रम। वो चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो, मैं उसे अच्छा करार नहीं दे सकता। उसूल सबके लिए बराबर है। कोई मेरे इंसाफ से रियायत हासिल नहीं कर सकता। आज फिर तुमने बेयासत के साथ झगड़ा किया है। अपने भाई के साथ तुम्हें ये दुश्मनी अब हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। ये बात मुझसे नहीं, उससे कहिए वालिदा, क्योंकि मेरी रियासत में छुप कर आने वाला और आका से मेरी शिकायत करने वाला वही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो उससे। बाबा को जो मकतूब लिखा था मालूम है। शहजादे बेयादत तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, बयासत। सलीम, आओ बैठो यहाँ। फिर कोई शिकायत की होगी तुमने शायद। ये तुम्हारी आदत है बेयाजत। मेरे सामने अपना गुस्सा बालाए ताक रखो। कौन हक पर है कौन हक पर नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। आज शब ये फसाद खत्म होगा। जो कुछ भी हुआ है उसे खत्म करो, माजी में दफन कर दो। ये मुमकिन नहीं है वालिदा, आपने हमें फजूल में तलब किया। मैं पहली मर्तबा बेयाजत का हम ख्याल हूं वालिदा। जैसा कि आप देख रही हैं, मेरा इससे बात करना भी मुमकिन नहीं। वालिदा, मुझे इजाजत दें। बेयाजत, तुमने सलीम को अपना हरीफ बना लिया है। देख रही हूं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि असल में तुम्हारा हरीफ शहजादा मुस्तफा है। किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी अब तो सीख लेना चाहिए तुम्हें। मैं अपने दोस्त और दुश्मन को खूब जानता हूं वालिदा, आप इस मामले में दखल मत दें। आका ने बाया तख्त आने की वजह से बेयासत को क्या सजा दी? और जहां से मिलने से रोक दिया उसे। बस इतना ही? मोहब्बत करने वाले के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी? ऐसा तो है, लेकिन आका का इंसाफ कितना अजीब है। बाया तख्त बगैर इजाजत आने की वजह से अली आगा का सर मुझसे कलम करवा दिया। आका ने आपके लिए यही सजा मुनासिब समझी ब्रादर, क्योंकि अतराफ में आपको चाहने वाली और मोहब्बत करने वाली बहुत सी अहम शख्सियात मौजूद हैं। वो भी रुखसत हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बेशकीमत सब साथी एक एक करके शिकार बन रहे हैं दुश्मनों का। आपको इस कदर नाउमीद होने की जरूरत नहीं है ब्रादर। ये नीचे रब भी आपके तरफदार है, रईस, सूबेदार और मैं भी। तुम्हारी तसल्ली, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बेशकीमत है बिरादर।
आप अपना सारा बोझ अब मेरे हवाले कर दीजिए। अपनी परेशानी और तकलीफ के बारे में मुझे बताएं, ताकि आपको आराम और सुकून मुयस्सर आ सके। आप ये बात फरामोश ना करें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं अपनी पिसरान का सोच रहा हूं हुरम। मुस्तफा और सलीम ब्याजत। वो ऐसी खताएं कर रहे हैं क्या? उनकी खताएं अब उनकी नहीं, मुझे अपनी खताएं महसूस होने लगी हैं। मेरा कोई लफ्ज, मेरा कोई फैसला अगर एक को खुश करता है तो दूसरे को उससे दुख होता है। सबको खुश रखना तो मुमकिन नहीं है सुलेमान, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपके फैसलों का मकसद, मुकद्दर और इन फैसलों की नीयत का इदराक उन्हें जरूर हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हाफिज शिराजी और शेख सादी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। वो दोनों जब एक दौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो मुझे वो दोबारा सुनाओ। तुम्हारी खूबसूरत और शीरीं ज़ुबान से एक बार फिर सुनना चाहता हूं। शेख सादी और हाफिज शिराजी मिलकर एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती के मालिक ने कश्ती में सवार होने के एवज उनसे रकम नहीं ली। हाफिज ने शेख सादी को नसीहत की कि सब्र से काम लेना और मुझसे सफर के दौरान सवाल मत करना। अचानक एक चिड़िया उड़कर आई और कश्ती के अर्शे पर बैठ गई। वो समंदर से पानी पीने लगी। हाफिज ने कश्ती का तख्ता हिलाकर उसे वहां से उड़ा दिया। शेख सादी शशतर रह गए और खुद को सवाल पूछने से ना रोक सके। हाफिज शिराजी ने उन्हें सब्र करने के लिए कहा। बिलाखिर वो साहिल पर पहुंच गए। रास्ते में एक तिफल से उनकी मुठभेड़ हो गई। हाफिज ने उस तिफल को कत्ल कर दिया। शेख सादी खुद को ना रोक सके और हाफिज को एक मासूम तिफल के कत्ल पर मलामत करने लगे। हाफिज बोले, क्या मैंने तुम्हें सब्र से काम लेने को नहीं कहा था? सवाल मत पूछो। दोबारा उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में उन्हें गिरने वाली दीवार दिखाई दी। हाफिज उस दीवार की मुरम्मत करने लगे। सादी ने हाफिज को यह फजूल काम करने से रोका। हाफिज बर्दाश्त न कर सके और सादी पर बेसब्री का इल्जाम लगाकर रास्ता अलग करने से पहले कहने लगे, मैंने कश्ती का तख्ता इसलिए निकाला क्योंकि साहिल पर एक लालची बादशाह रहता है जो नई कश्तियां छीन लेता है। मैंने तिफल को इसलिए कत्ल कर डाला कि वो जवान होकर अपने वालिदैन के लिए अजाब का बाइस बनता और उन्हें उम्र भर दुख देता। और अब दीवार के मुतालिक बताता हूँ। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। जब वो जवान होंगे तो उन्हें दीवार के नीचे से खजाना मिलेगा। उस दिन के आने तक दीवार सलामत रहनी चाहिए। शेख सादी की समझ में तब वो बात आई कि हर खैर में कोई शर और हर शर में कोई खैर छुपी होती है। हर नेमत में कोई गम और हर गम में कोई नेमत छुपी होती है। चीजें जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती। सुलेमान, तिफलान से तवक्को मत रखें कि वो आपको समझेंगे कभी, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो ही दुरुस्त होता है। हुरम, अमीर बहर पाशा की मौत ने मुझे बेहद अफसुर्दा और तन्हा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी शीरी ज़ुबान से बातें सुनकर,
तुम्हारी आंखों की ताबनाकी देखकर मैं सब कुछ भूल गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद अब तुम ही हो खुरम। बयाज़त से गुफ्तगू हुई थी, उसे सबक मिल गया है। मुझे यकीन है कि वो आइंदा एहतियात से काम लेगा। इंशाल्लाह। उसका बगैर इजाजत आना ठीक नहीं था, मगर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, आप बखूबी जानते हैं। कम से कम आपकी इजाजत के बगैर अराकीन सल्तनत से मुलाकात तो नहीं की उसने। जो भी था उसका जाती मामला था। वो मसला खत्म हो चुका है हुरम। हूर जहां बेहान के पास वापस जाएगी और कभी लौट के नहीं आएगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो साजिश थी सुलेमान। हूर जहां अपनी मर्जी से मेरे पिसर की रियासत नहीं गई थी। ये तो अल्लाह ही जानता है कि न जाने उसने मेरे पिसर पर कौन सा जादू किया है। इसका क्या मतलब हुआ? खजीना सुल्तान और इब्राहिम पाशा के साथ जो कुछ हुआ आपको मालूम ही है। हो सकता है कि उस लड़की के जहन में इस हवाले से जहर भरा हुआ हो और अब इंतकाम लेने की खातिर वो यहाँ हमारे पास आ गई। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये तुम क्या कह रही हो हुरम? हूर जहां मेरी हमशीरा खजीना की दुख्तर है। आओ। आका, शहजादी सलीम मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, वालिदा। आका, मैं रवाना हो रहा हूं। रवानगी से कबल आपकी दुआएं लेने का मुतमन्नी हूं। तुम पर मेरे एतमाद से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम्हें इसका एहसास होगा इंशाअल्लाह। अब आपके मुकाबले एक नया सलीम खड़ा है मेरे आका। दरअसल मैं खुद को दुनिया के अजीम बादशाह का लायक शहजादा साबित करने का फैसला कर चुका हूं। आपकी हिमायत की वजह से मैं अपने अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबत झेलने की हिम्मत महसूस कर रहा हूं मेरे आका। तुम्हारा इंसाफ तुम्हारी देख की मानिंद तेज धार हो। आमीन। आका, आप जानते हैं कि मेरी मंजूर नजर उम्मीद से है। तिफल की पैदाइश पर आपका और वालिदा का मनीसा में इस्तकबाल करना चाहता हूं। अगर हो सके तो तशरीफ लाकर मेरे होने वाले तिफल की समाअत में अजान दीजिए। आपके गुलाम सलीम को बहुत मुसरत होगी। हम जरूर आएंगे।